In the name of Allah, I am going to deliver English lecture for class 8th. Dear students, Assalamu alaikum. You know that dears, we are reading uh, the prose global warming catastrophe in making, and we are reading it from 2 days, last 2 days. Today I am going to do this reading on page number 20, first paragraph of page number 20. I will first do it as reading, then after that I will explain it. And I have already written the meanings of some difficult words on this whiteboard. Wetland habitat, productivity and process are linked to the cycle and seasons, are getting adversely affected due to seasonal changes in the precipitation and runoff. While the major lakes like the Dull and the Wooler have shrunk considerably, many smaller water bodies and seasonal ponds have completely disappeared. Most of the wetlands have less biodiversity in terms of flora and fauna compared to the situation about half a century ago. In the process, abonox, weeds, and other aquatic life have succeeded the more productivity and useful biota. The migratory birds have changed their cycle, while some of them stay here even during summer. Others do not return even in winter. The waterfowl that used to migrate here during winter months stay here for most of the year. Some birds like hoopoe, which were seen in the flocks in spring, are hardly spotted. Many others like Katij have completely disappeared. Rapid melting of the Kolhi Glacier, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas, have evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. Kolhi has shrunk 18% during the past 3 decades due to increase in temperature caused by high levels of pollution, by the emission of greenhouse gases, by ever increasing vehicles and cement plants, besides increased human activities near the glacier, particularly by the Gujaras and Bakalwals, significant increase in the number of pilgrims and tourists in the eco-sensitivity region around Amarnath shrine is also a reason for melting of this glacier. Wetland habitat. Now I will explain it. Wetland habitat, productivity and process. Wetland habitat means big land, big land of covered with swamp or marsh. यानी वो ज़मीन जो वो उसको कहते हैं दबदबी ज़मीन, यानी वो ज़मीन जो गीली होती है, गीली ही रहती है, साल हर साल गीली ही रहती है, उसको कहते हैं वेटलैंड. जो वेटलैंड हैबिटेट है यहाँ पे, वो ज़मीन जहाँ पे परिंदे आते थे उसमें, या और कुछ उसमें से कोई घास या बाकी चीज़ उसमें से उग आती थी, उसको वेटलैंड कहते हैं. प्रोडक्टिविटी एंड प्रोसेस बीइंग लिंक्ड टू द साइकिल ऑफ सीजन, ये भी कुछ इससे जुड़ी हुई थी. ये सीजन जो चेंज होते थे, मौसम जो बदलते रहते थे, तो उसमें जो ही मौसम बदलते रहते थे तो परिंदों का वहाँ पे आना जाना होता था, या उसमें से कुछ वो घास फूस निकल आती थी उस वेटलैंड में से, तो या वहाँ से कुछ हमें जो हासिल होता था उस वेटलैंड में से, वो सुंगाड़े होते थे हासिल वहाँ से होते थे, या और किसी किस्म के वो मेवे होते थे, सब्जियाँ वहाँ से हमें हासिल होती थी. तो वो भी इससे मुतासिर हो गई है. जो ये यानी ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसके इफेक्ट से वो भी मुतासिर हो चुकी है. आर गेटिंग एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द सीजनल चेंजेस. जब मौसम जब बदल गए हैं, मौसम का जो तगय्युर है, इससे वो भी उनका भी वो पैदावार जो उसमें से वो निकलते थे वेटलैंड में से, उस पर भी असर पड़ गया है, वो भी मुतासिर हो चुकी है इससे, और बिल्कुल उसमें भी तगय्युर ये रूनुमा हुआ है. इन द प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ, एक वजह यह है जो इस मौसम के तगय्युर से प्रेसिपिटेशन में ये बारिश जो बरसती थी इसमें भी कमी हो गई है, ये भी मुतासर हो चुकी है या ज़्यादा बरसती है. और रन ऑफ, बारिश बरसने के साथ साथ दरियाओं का, नदी नालों का बहना, वो भी मुतासर हो चुका है, तो उसका असर सीधे तौर पे उस वेटलैंड पे भी पड़ गया है. Where the migratory lake, where the major lakes like the Dull
and the Woller. जब हम इस कश्मीर की बात करें, यहाँ के जो बड़े बड़े झील थे, जो बड़े बड़े झील हैं, हम डल की बात करें या वॉलर की बात करें, वो हैव श्रिंक कंसिडरेबली मैनी स्मॉलर वाटर है, वो बिल्कुल लगातार घटते जाते हैं. जो उनका एरिया था, जो इनकी बायोडाइवर्सिटी थी, जो इनका अहाता था, वो बिल्कुल सिकुड़ चुका है, वो बिल्कुल कम हो चुका है. दे हैव बीन टोटली हैव बीन इमीडिएटली श्रिंक. वो मतलब वो दिन ब दिन सिकुड़ता जाता है. वजह क्या है? वजह यही है, ये ग्लोबल वार्मिंग से हो चुका है. जब बारिश नहीं पड़ी तो लोगों ने उस जमीन को, जो वहां पे जमीन उस पानी के नीचे रहती थी, उसको अब आबाद करने लगे हैं. उस पे उन्होंने वो इंक्रोचमेंट उस पे किया है, उन्होंने वहां पे ढांचा बनाया है, कुछ ढांचे बनाए हैं, तैयार किया है. तो क्योंकि जब वहां पे पानी ही नहीं है तो इसलिए उन्होंने वहां पे दुकान बना रहे हैं या कोई मकान बना रहा है और कुछ बना रहा है, इससे उसका एरिया भी खत्म हो चुका है. Many smaller water bodies and seasonal ponds have completely disappeared. कुछ जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गायब हो चुकी है. अगर हम स्प्रिंग, बहुत सारे ऐसे स्प्रिंग्स हैं कश्मीर में जो अब बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ता है कि कहाँ पे थे कहाँ पे नहीं थे, वो गायब हो चुके हैं. वो ये वजह यही है कि जब बारिश नहीं पड़ती है, जब बारिश मुतासिर हो चुकी है, जब बर्फ मुतासिर हो चुकी है, तो उनका जो वहां पे जहां से वो निकलते थे वो चश्मे, जहां से उनका पानी आता था, बिल्कुल वो खत्म हो चुका है, वो सूख चुका है, वो सिकुड़ चुके हैं, इसलिए वो गायब हो चुके हैं. मोस्ट ऑफ द वेटलैंड्स हैव लेस बायोडाइवर्सिटी. इस तरह से हम ज़्यादा इन वेटलैंड्स की बात करें, उनका जो अहाता था, बायोडाइवर्सिटी थी, वो कम अब रह चुका है इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना. अगर हम प्लांट लाइफ की बात करें या एनिमल लाइफ की बात करें, उन पे अब कुछ नहीं रहा है कंपेयर टू द सिचुएशन अबाउट हाफ ए सेंचुरी अगो. अगर हम एक सदी या हाफ सदी के, अगर हम 50 यानी अगर हम 50 सालों से पहले देख लें, आज से 50 सालों से हमें पहले नजर दौड़ाएं तो वहाँ कैसा वहाँ फ्लोरा एंड फोना था, और आज हम देखें तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है. इन द प्रोसेस अबोनक्स वीड्स एंड अदर एक्वेटिक लाइफ हैव सक्सीडेड द मोर प्रोडक्टिव एंड यूजफुल बायोटा. वहाँ पे अबोनक्स वीड्स, अनप्लीजेंट एंड रूड प्लांट्स, जो चीजें हमें जरूरत नहीं है वो वहां पे वो घास निकल आई है, वो वीड्स वहां पे निकल आए हैं. एंड अदर एक्वेटिक लाइफ हैव सक्सीडेड द मोर प्रोडक्टिव एंड यूजफुल बायोटा. और वहां पे वो प्लांट लाइफ वहां पे ये नमूदार हो चुकी है जिसकी हमें जरूरत वहां पे नहीं है, वो घास फूस वहां पे निकल आई है. द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव चेंज्ड देयर साइकिल्स. इसी तरह से जो परिंदे वो जो माइग्रेशन करते थे, यहाँ से उन इलाकों का रुख करते थे जो गर्म होते थे, या उन गर्म इलाकों से उड़कर यहाँ आते थे, उन्होंने भी अब अपना वो साइकिल, वो अपना वो माइग्रेटरी साइकिल जो उनका था, उन्होंने भी वो अब तब्दील, वो भी उन्होंने चेंज किया है. वेल सम ऑफ देम स्टे हियर इवन ड्यूरिंग समर. वो अब उनमें से बहुत सारे बर्ड्स समर में अब यहाँ रहते हैं. अदर्स डू नॉट रिटर्न इवन इन विंटर. और कुछ ऐसे होते हैं जो अब विंटर में भी वापस नहीं आते. द वाटरफाउल दैट यूज्ड टू माइग्रेट हियर ड्यूरिंग विंटर मंथ्स. यहाँ पे एक परिंदा होता था वाटरफाउल, मुर्गा भी उसको कहते हैं, मुर्गा भी उसको कहते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे विंटर्स में आता था. अब क्या हुआ है? स्टेज हियर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर. अब वो देख यहाँ पे हर साल बराबर लगातार साल भर रहता है. सम बर्ड्स लाइक हुफ which were seen in flocks. अगर हुफ की हुदहुद की हम बात करें तो वो झुंड में देखने को मिलता था मौसम बहार में. और हार्डली स्पॉटेड. आज उसका नामो निशान भी नहीं है, कहीं पे वो दिखाई नहीं देता है. मैनी अदर्स लाइक कतिश हैव कंप्लीटली डिसअपीयर्ड. और इसी तरह हम कतिश की बात करें, वो भी आप देखने में नहीं मिलता है. अगर डायनासोरस की बात करें, इससे पहले यहाँ पे डायनासोरस था, वो डिसअपीयर्ड, वो उसका एक्सटिंक्ट हुआ है. एक्सटिंक्ट मीन्स वो मतलब खत्म हो चुका है, उसका नामो निशान, उसका वो नाबूद हो चुका है इस दुनिया से. Rapid melting of Kolhi Glacier, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas. अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें, कश्मीर का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर कोल्ही ग्लेशियर जो है, वो बिल्कुल अब वो दिन ब दिन क्या पिघलता जाता है. उसका एरिया जो है वो खत्म होता जाता है. has evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. इस पिघलने की वजह से, कोल्ही ग्लेशियर के पिघलने की वजह से, इसने माहौलियाती जो
साइंसदान है या माहौलियात दान जो है, इनको इस सोचने पे मजबूर किया है कि हम इसकी ये पिघलने की ये रफ्तार जो है वो कैसे हम कम करें, इस पे हम कैसे कंट्रोल करें. Kohli has shrunk 18% during the past 3 decades due to increase in temperature. कोहली ग्लेशियर जो है वो पिछले 3 दहाइयों में तकरीबन 18% श्रिंक हो चुका है, तकरीबन 18% खत्म हो चुका है, caused by high levels of pollution by the emission of greenhouse gases. ये कैसे हुआ है? ये ज़्यादा तादाद जो ग्रीन हाउस गैसों की हुई है, ज़्यादा इखराज जो ग्रीन हाउस गैसों की हुई है, उसी से हुआ है ये. by our increasing vehicles and cement plants, या गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है, या सीमेंट प्लांट्स या सीमेंट इंडस्ट्रीज की तादाद बढ़ गई है. besides increased human activities near the glaciers particularly by Gujars and Bakarwalas, या गुजरस और बकरवाल जो है वो अपना रिवर वहाँ ग्लेशियरों पे ले आते हैं, वो अपना वो जब यानी इन गर्मियों के मौसम में वो अपना वो रिवर लेके आते हैं उन ग्लेशियरों के नज़दीक, और उनके उस आने से भी वहाँ जब टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है तो इससे भी वहाँ पे वो बर्फ पिघलने शुरू हो जाती है. सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, या जो पिलग्रिम्स यहाँ पे आते हैं, सियाह लोग जो आते हैं, जाहिर लोग जो यहाँ पे आते हैं, उनकी वजह से भी इन द इको सेंसिटिविटी रीजन, उस एरिया में जो जहाँ पे इको सेंसिटिविटी है, जहाँ पे लोगों के बढ़ने की तादाद से भी उस माहौल पे असर पड़ता है. तो वहाँ भी या अमरनाथ श्राइन जब हम देखेंगे तो अगर लोगों की तादाद वहाँ बढ़ेगी, वहाँ लोगों की तादाद तो बढ़ती रहती है, अगर वो भी इको सेंसिटिविटी एरिया है, यानी लोगों की बढ़नी तादाद के बढ़ने की वजह से वहाँ उस माहौल पे असर पड़ता है. ये भी एक वजह है कि ये ग्लेशियर जो है ये श्रिंक हो चुके हैं. इज आल्सो अ रीजन फॉर द मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर. ये कुल ही ग्लेशियर इसी वजह से मेल्ट हुआ है. इस तरह से हमने यहाँ तक आज रीडिंग की है. इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो, वी विल कंटिन्यू दिस रीडिंग टुमारो. इट्स एनफ फॉर टुडे. गुड बाय, मे गॉड ब्लेस यू. स्टे होम, स्टे सेफ.